So today's topic will be on guidance regarding relationships with parents and children. So first we're going to see what is the guidance about keeping relationships with parents from the ayat relevant. And we'll start with Rabbi Auzubika min hamazat shayateen, Bismillahir Rahmanir Rahim, with the name of Allah, Ar-Rahman and Ar-Rahim. So first ayat we are going to see is Surah Baqarah, ayat number 83. Surah 2, ayat number 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب ہم نے اخذ کیا covenant میثاق بنی اسرائیل سے, the Muslim world, لا تعبدون الا اللہ, کہ نہیں تم سرو کرو کسی کو سوائے اللہ کے, وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسن رویہ رکھنا ہے. Ihsanan means ihsan, which means the best. So you have to keep your best behavior towards your parents. Wazil kurba, اور قریب کے لوگ, friends and relatives. Wal yatama, and orphans who don't have anyone to take care of them. Wal masakine, and the needy. Wakulu linnase husna, اور بات کرو انسانوں سے, again حسن والی بات, اچھی بات. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو صلاۃ, اللہ کے ساتھ کنیکشن اور کمیونیکیشن قائم کرو. وَآتُوا الزَّکاۃ, اور دے دو جسٹیفیکیشن. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ, اور پھر اگر تم پلٹ جاؤ گے, إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ, سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگ جو یہ سب کام کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, اور تم ہو اعراض کرنے والے. تو کافی لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کر پاتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے گائیڈنس یہ ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ از ٹو سرو اللہ, اینڈ دین یو ہیو ٹو بی کائنڈ, یو ہیو ٹو بی گڈ ٹورڈز یور پیرنٹس. سورہ 17 آیت نمبر 23 دیکھیے. Surah 17, ayat number 23 and 24. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اور جب فیصلہ کیا آپ کے رب نے, اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ نہیں تم سرو کرو سوائے اس کے کسی کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, اچھا رویہ رکھو. اما یبلغن عندک الکبر, اور اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی احدہما, ان میں سے کوئی ایک اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑی عمر میں, میننگ اولڈ ایج میں اگر آپ کے پاس کوئی پہنچے, او کلاہما, تو آپ اس سے نہیں کہیں گے, فلا تقل لہما, ڈونٹ سے a word of anything which is اف, ولا تقل لہما افن, آپ ان سے کوئی اف والی بات نہیں کریں گے. اف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ رسپیکٹ انسلٹنگ ہوگی. ڈونٹ بی اریٹیٹڈ, don't say anything which is going to make them feel hurt. So you have to remain respectful towards them. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور نہ ہی ان کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے, ان کو دھتکارنا ہے کسی بات پہ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور بات کریں ان سے کرم والی بات. کرم از آنریبل, بات کیجیے, کائنڈ بات کیجیے, نرمی سے بات کیجیے. So you will not say anything to them whereby you are being disrespectful, and you have to be kind to them, talk to them in a kind tone, and do not scold them. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ,
मिर रहमत, और झुकाएं उनके लिए अपने परों को, अपने विंग्स को, इन ह्यूमिलिटी, इन काइंडनेस। तो ह्यूमिलिटी के साथ, काइंडनेस के साथ, आउट ऑफ लव उनके लिए अपने परों को झुकाइए, जिसका मतलब ये है कि आप बी हम्बल टुवर्ड्स देम, बी काइंड टुवर्ड्स देम। वकुल, और उनके लिए कहिए, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए हमारे रब इन पर रहम कीजिए जैसे कि इन्होंने मुझे पाला जब मैं छोटा या छोटी थी। तो अल्लाह से आपने ये दुआ मांगनी है, दैट अल्लाह प्लीज हैव मर्सी ऑन देम, कीप देम इन योर रहमत। दिस इज द दुआ दैट यू आर गोइंग टू say for your parents, because they also nurtured you, they protected you when you were young. तो ये आप याद करते हैं वो फेवर जो आपके पेरेंट्स ने आप पर की होती है इन योर चाइल्डहुड, and you want Allah Ta'ala to revert the same favor to them. So this is the prayer that we do for our parents. 19 की 32 देखिए, सूरा 19 आयत नंबर 32। वबरन बिवालिदाती, और मुझे बनाया उन्होंने मेरी वालदा के लिए काइंड, वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मैं नहीं हूँ जबर करने वाला। शकिया इज द वन हु कॉजेस मिजरी। तो ये हजरत याहिया के रेफरेंस, हजरत ईसा के रेफरेंस से है कि उन्होंने अपनी वालदा के लिए, he was not overbearing on his mother, so Allah made him kind to his mother. So there is an additional thing जो वालदा के लिए है, be more kind towards your mother, because she is the one who gives you birth, and she goes through a lot of difficulty while giving you birth and then nurturing you as well. So there is special consideration for mothers here. अब 2 की 215 देखिए, सूरह बकरा आयत 215। सूरह 2 आयत 215। यस अलूना का माजा युनफिकून, वो सवाल करते हैं आपसे कि वो क्या खर्च करें। कुल, कह दीजिए, मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो तुम खर्च करते हो खैर में से, whatever you spend out of that is good, फलिल वालिदैन, वो वालिदैन के लिए है, वल अकरबीना, और करीब के रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा वल मसाकीन, और यतीम और मस्कीन के लिए, वब्न सबील, और इब्न सबील के लिए। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी तुम ये काम करोगे खैर में से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह को उसका इल्म है। तो वालिदैन के ऊपर आपने खर्च करना है। 2 की 180 देखिए, सूरह बकरा की 180 आयत। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा, तुम्हारे ऊपर लिख दिया गया है कि जब हाजिर हो, अहादकुमुल मौत, तुम में से किसी एक के ऊपर मौत, इन तरह का खैरा, तो वो छोड़ के जाए खैर में से, अच्छे में से छोड़ के जाए, निल वसीयतु लिल वालिदैन, कि वो वसीयत करे अपने वालिदैन के लिए कुछ। तो जो भी आप छोड़ के जाएंगे, अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं तो उनके लिए आपने वसीयत में कुछ छोड़ के जाना है। वल अकरबीना बिल मारूफ, और करीब के रिश्तेदारों के लिए मारूफ रिकग्नाइज्ड तरीके से कुछ छोड़ के जाए। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक है उन पर जो तकवा करते हैं। सो दिस इज देयर ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, all those who are God fearing, who take God from Allah, that they leave something for their parents as wasiyat. अब 31 की 14 देखिए, सूरह 31
Ayat number 14. ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की इंसान के लिए बिवालिदैहि, उसके वालदैन के बारे में। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसे उठाया, बेयर किया, हमल किया उसकी वालदा ने, upon weakness. She goes through weakness when she is bearing the child. वफ़िसालुहु फ़ी आमैने, और उसकी weaning जो है, to wean the child off, it is for 2 years. अनिश्कुरली, तो फिर शुक्र करो मेरा, अल्लाह का शुक्र करें, वाले वालिदैका, और अपने वालदैन का भी शुक्र अदा करें। इलैयल मसीर, और ये है मेरी तरफ ही तुम्हारा फाइनल गोल है। तो अल्लाह ताला is instructing us to be grateful for all the effort, for all the difficulty that the mother goes through, and we have to be grateful to Allah and we have to be grateful to our parents. अब नेक्स्ट आयत में अल्लाह फरमाते हैं व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी, और अगर वो स्ट्राइव करें कि आप आप मेरे साथ शरीक करें किसी और को, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने एक लिमिट, एक बॉर्डर बता दिया है कि अगर इफ दे स्ट्राइव टू मेक यू जॉइन विद मी एनीवन एल्स in service of Allah, things or anything that you don't have knowledge of, फला तुतेहुमा, तो आपने उनकी अतात नहीं करनी है। वसाहिबहुमा, बट यू आर गोइंग टू गिव देम कंपनी, फिर दुनिया मारूफा, दुनिया में रिकग्नाइज्ड तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारी थोड़ी सी एक कल्चरल कंडीशनिंग आती है कि वालिदैन को कुछ नहीं कहना और उनकी फर्मा बरदारी और अतात इस हद तक करनी है कि अगर वो गलत भी हो तो उनकी बात को मानना है, तो ये वो नेगेट हो जाती है कि अगर वालिदैन गलत कोई चीज़ कह रहे हैं आपको तो आपने उसको नहीं मानना है। सो अल्लाह की सर्विस से मुराद ये है, बिकॉज हर आयत से पहले कहा जाता है कि पहले आप अल्लाह को सर्व करें और फिर वालिदैन की साथ you have to be kind to them. So when you recognize what is service to Allah, because service to Allah is the right thing to do, और उसमें अगर आपको वालिदैन किसी और को सर्व करने को कह रहे हैं कि किसी और को whatever your parents have their own ideas and opinions and views, and they may not be aware that they're actually serving something else, तो आपको उसको नहीं करना है. You will not follow them, but it doesn't mean that you detach from them completely. Give them company in a recognized way, in a respectable, good way. तो हर मामले में आपको उनको डिस्कनेक्ट नहीं करना अपने आप से. तो आप जहाँ जिस मामले में आपकी उनसे इख्तलाफ होगा, because you think that they are not on the right track, you can disassociate in that matter only. But apart from that, you will continue to be with them and meet them and spend time with them. Wattabi sabila man anaba ilayya, and follow the way which will turn you towards me, for of those who turn towards me. Summa ilayya marji'ukum, फिर तुम्हें मेरी तरफ ही रुजू करना है. फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा जो कुछ तुमने अमल किए. तो इस आयत के बाद as parents, if we have to understand also that if we are saying something wrong, the children have a right to take a stand and not follow, and we have to understand that they have to do the right thing because this is in accordance with what Allah is saying. तो यहाँ पे हमें भी अपने आप को चेक करना पड़ता है एज पेरेंट्स. नेक्स्ट आयत देखिए 4 की 135, सूरा 4 आयत 135.
या अय्युहल लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू कवामीना बिलकिस्ते, तुम हो जाओ स्टैंड लेने वाले जस्टिस के साथ, शुहदाअ लिल्लाह, एज विटनेसेस फॉर अल्लाह, वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे वो हो तुम्हारी नफ्स के अगेंस्ट भी, इवन इफ इट इज अगेंस्ट योर ओन सेल्व्स, अविल वालिदैन, या तुम्हारे वालिदैन के अगेंस्ट भी, वल अकरबीन, और या करीब के लोगों के लिए भी हो, इन यकुन गनीयन औ फकीरन, और अगर तुम हो और या चाहे वो हो किसी गनी, किसी रिच, या किसी फकीर के लिए, फल्लाहु अवला बिहिमा, Allah will protect, can best protect you both. Either you are rich or poor, Allah will protect you. But you have to take a stand for the right, for justice. तो चाहे अपनी नफ्स के अगेंस्ट हो, वहां भी स्टैंड लेना है, या वालिदैन के अगेंस्ट भी हो, तो आपको यू हैव टू डू द राइट. तो यहाँ पे अगेन वो बात कंफर्म हो जाती है. तो इसलिए as parents we have to keep that into consideration, and as children we have to understand that if our parents are not saying or doing something right, and we have better awareness and learning, then we should not follow them. We have, Allah Ta'ala ने हमें कहा है कि आप ना follow कीजिए उनको. And same example we have seen from Hazrat Ibrahim also, because Hazrat Ibrahim takes a stand against his father. 37 की 85 देख लीजिए, सूरह 37 आयत नंबर 85. इस काला ले अबी है, और जब कहा उन्होंने अपने वालिद से, व कौमिही, और अपने लोगों से, माज़ा ताबुदून, ये क्या है जिसको तुम सर्व कर रहे हो. तो he has questioned his father also and his qawm as well, that what is it that you are serving. तो आपको blind following नहीं करने की जरूरत है पेरेंट्स की, and you are supposed to, you are required to take a stand for the right. That's very important that we have to keep into consideration. अब आगे आप देखिए, next we are going to continue with, as parents, what is our duty, what is the responsibility, and how are we supposed to have our relationship with our children. तो इस ज़िम्रे में पहले देखिए सूरह 31, सूरह लुक़मान आयत नंबर 3. सूरह 31 आयत नंबर 13 जी, 1-3. व इस काला लुक़मानु ले इब्निही, और जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे से, वहुआ याइज़ुहु, और वो हो गया वाज, एज इंस्ट्रक्शन, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, नहीं तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, बेशक शिरक करना बहुत बड़ा जुल्म है, अपनी नफ्स के साथ जुल्म है. तो ये सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी औलाद को आप बताएं, अल्लाह के बारे में अवेयरनेस दिलाएं. अल्लाह के बारे में अवेयरनेस दिलाने का मतलब ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेलिंग देम, इट्स अबाउट बीइंग अ रोल मॉडल फॉर इट. तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे, आपके बच्चे वही ऑब्जर्व करके उसको फॉलो करेंगे. तो योर लेवल ऑफ बिलीफ इन asking from Allah only, not serving anything else, will be picked up by the children. Next ayat देखें. Sorry, ये वाली हमने आयत देखी है 14 and 15. 4 की 6 देखिए, सूरह 4 आयत नंबर 6. वब्तलुल यतामा, और ट्रायल लो, चैलेंजेस दो यतीमों को, हत्ता इज़ा बलहुन निकाह,
यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाए निकाह की उम्र को, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, और अगर तुम उनमें महसूस करो, उनमें देखो रुश्द, सेंसिबिलिटी, फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, तो दे दो उनकी तरफ उनके माल। अब यहाँ पे यतीमों के लिए कहा गया है कि मेक ट्रायल फॉर देम, पुट अप चैलेंजेस फॉर देम, the same instruction, the same pattern you're going to follow for your own children also, because yatim is that who cannot think for himself, who cannot take care of himself. So when we are nurturing our children, we will make challenges, we will put up challenges for them in order to train them for the difficulties in life, and we will help them mature. Otherwise, agar hum unko bahut zyada protect karke rakhenge, to they will be growing up in a bubble, and when they have to go out and fend for themselves and face the real world, they will be at a loss. तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको छोटे छोटे कामों से सिखाना है, उनको डिफिकल्ट टास्क विच दे कैन अचीव, उनके थ्रू उनके लेवल ऑफ मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है. So that is our duty as parents. Same thing was done by Hazrat Ibrahim, Surah 37, ayat number 102. It's further confirmed with the example. Surah 37, ayat 102. फलम्मा बलगा मआहु साया, और फिर जब वो पहुंचे उनके साथ सही करने को. तो ये सिर्फ आई विल जस्ट रीड अप टिल हियर, क्योंकि जब हजरत इस्माइल पहुंचे उस लेवल तक कि वो स्ट्राइविंग कर सकते थे हजरत इब्राहिम के साथ, तो हजरत इब्राहिम ने वो फिर टेस्ट उनको ऑफर किया ऑफ सबमिशन टू अल्लाह, एंड दैट वाज अ टेस्ट जिसमें हजरत इस्माइल पूरे उतरे. तो ये फर्दर कंफर्म्स कि आपने अल्लाह के साथ अपने बच्चों को अल्लाह के बारे में आगाही देनी है, उनको सिखाना है कि व्हाट एक्चुअली मीन्स सर्विंग अल्लाह, एंड टू टर्न टू अल्लाह इन ऑल situations, because he is present everywhere and he is looking after us. He is our God, वो हमारी हिफाजत करते हैं. और जब वो इस लेवल पे आ जाएं कि वो समझदारी की लेवल पे हो, तो फिर उनकी फर्दर आपने सबमिशन टू अल्लाह टेस्ट करनी है. नेक्स्ट आयत देखिए 4 की 7, सूरा 4 आयत नंबर 7. लिर्रिजाले नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी, और मर्दों के नसीब में है जो उनके वालिदैन छोड़ते हैं, वल अकरबून, और करीब के लोगों के लिए भी, वलिन निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी, और जो औरतों के नसीब में है वो उसमें से है जो उनके वालिदैन छोड़ते हैं. सो जो भी वालिदैन छोड़ते हैं उसमें से पोर्शन मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है, जो आगे आयत नंबर 11 में अल्लाह ने फर्दर एक्सप्लेनेशन दी है. बट यू हैव टू लीव समथिंग फॉर योर चिल्ड्रन, वल अकरबूना, और करीब के लोगों के लिए भी, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसर, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, उसमें से नसीबम मफरूदा, उनका पोर्शन फर्ज किया गया है. तो आपने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के, जो भी इनहेरिटेंस हो, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, व्हाटएवर यू लीव, उसमें से पोर्शन इज फॉर योर चिल्ड्रन, वेदर दे आर मेल और फीमेल. 17 की 31 is the instruction about how to bring them up. Surah 17, ayat number 31. वला तक़्तुलू औलादकुम, और नहीं तुम कत्ल करो तुम्हारी औलाद को, खशियता इमलाक, आउट ऑफ फियर ऑफ वांट, नहनु नर्ज़ुकुहुम, हम
उनको भी रिस्क देते हैं, व ईयाकुम, और तुमको भी रिस्क देते हैं। इन्ना कत्लहुम काना खितअन कबीरा, बेशक उनकी किलिंग है बहुत बड़ी खता, इट्स अ ग्रेट सिन। अब कत्ल हमने पढ़ा है फाइट, टू ओवरवेल्म, टू सबड्यू। तो आपने अपनी औलाद का कत्ल नहीं करना। औलाद के कत्ल का मकसद मतलब ये है कि आपने उनकी पर्सनालिटी किलिंग नहीं करनी है, because you think that they should be a certain way, they should be doing certain things. तो आप उनकी personality को ignore करते हुए you impose your demands on them out of fear of want, because you feel कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये पीछे रह जाएंगे, या इनके जो है इनकी सही तरह से डेवलपमेंट नहीं होगी, या ये बाकी दुनिया में इस तरह से competitive नहीं रहेंगे। तो वो आपके अंदाजे के मुताबिक whatever you feel, you want to push your children to do certain things which probably they are not too happy about. It's not about, देखिए nurturing तो आपने करनी है, guidance भी उनकी करनी है, right from wrong का आपने उनको सब कुछ सिखाना है, लेकिन हर बच्चा अपनी individual personality लेके पैदा होता है। We have to respect that. तो जिस तरह से वो बिहेव करता है, या जिस तरह से उसका लर्निंग पैटर्न है, या जिन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, उनको आपने रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको वो चीज़ें उसकी ज़ात में, उसकी फितरत में बना के दी है। सो यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट kill the personality of the child to feel that whatever you think is right, he or she should be doing exactly the same way and coming up to your standards of acceptance. तो उसके अलावा आपने उनको let them grow at their own pace, keep guiding them, keep encouraging them. हर बच्चा academically inclined नहीं होता है, उसमें फ़र्क किस्म के talents भी होते हैं। आपको जब आप nurturing environment देते हैं तो बच्चों के अंदर से जो उनकी खूबियाँ होती हैं, जो उनकी strengths होती हैं, वो बाहर निकलती हैं, and that is the lead to take in, you know, in deciding which direction they should take. And if they desire, if they have, you know, when they grow up enough and they have a different opinion from yours, you have to respect that. तो ये यहाँ पे उनको किल मत कर दीजिए, उनकी पर्सनालिटी को दबा मत दीजिए, उनको हर वक्त आपने with love, kindness and nurturing you have to help them and support them. Next ayat देखिए 6 की 137. It will further explain what is meant by killing your children. Surah 6 ayat 137. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, और इस तरह से जीनत दी गई है ज़्यादातर से उन लोगों में जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के साथ दूसरी चीज़ों की सर्विस करते हैं, कत्ला औलादिहिम, कि वो उनकी औलाद का कत्ल करते हैं। They actually think it is the right way to mold them, to shape them according to themselves. शुरकाउहुम लियुर्दूहुम वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम, और वो शरीक होते हैं उनकी, they lead them to destruction, उनकी तबाही में, और वो उन पे लिबास पहना देते हैं उनकी अपनी दीन, अपनी जजमेंट का। So this is what it means when you are killing your children, that you are imposing your judgments upon them. You have to train them, you have to educate them, you have to make them aware, but you should allow them to make their own decisions, to decide for themselves. You have to, depending on the age, you have to constantly guide them and calibrate and recalibrate how you influence them, because you have to keep stepping back and allow them that freedom also, because as adults they can decide for themselves, and थोड़ा सा आपको उनको वो अलाउंस देने की ज़रूरत होती है। completely अपने मुताबिक उनको बनाना और उनकी छोटी ख्वाहिशात या जो भी उनकी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें उनको रोक देना या अब्रप्ट कर देना उनके प्रोसेस को,
that will be wrong, that will be killing their personality. वलौ शाह अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहते, मा फ़अलूहु, तो वो ये नहीं करते. फज़रहुम वमा यफ्तरून, तो छोड़ दे उनको और जो वो इन्वेंट कर रहे हैं. Those people who are doing this, let them be, and whatever they are inventing, let them do that. आपने अपनी guidance ये लेनी है कि when you see that, because this creates pressure on the children. That is why children feel a lot of stress coming from parents, because parents want them to be exactly the way they think they should be. And that's not possible for the children. And that's why we have to submit to this ayat कि आप अपनी judgments उन पे impose ना करें, और हर मामले को आपने देखना है कि कितना आप उनको समझा सकते हैं और कितनी आपको उनकी मर्जी को एक्सेप्ट करना है. 6 की 140 देखिए, सूरह 6 आयत 140. कद खसिरल लजीना कतलू औलादहुम सफहन, और बेशक नुकसान उठाया उन लोगों ने जिन्होंने कत्ल किया उनकी औलाद को, सफहन, in a foolish manner, in an unwise manner. बेवकूफ़ी में उन्होंने अपनी औलाद के ऊपर इस तरह से प्रेशर डाला, बगैर इल्मिन, विदाउट नॉलेज, वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह, और हराम कर दिया उन्होंने वो रिस्क जो अल्लाह ने उनको देना था, इफ्तिराअन अलल्लाह, by inventing lies against Allah. कद दल्लू वमा कानू मुहतदीन, बेशक वो भटके हुए हैं और वो नहीं है गाइडेंस पर. तो जो लोग इस तरह से they don't pay attention to what they are doing, they don't mindfully control themselves and guard themselves by seeking guidance from Allah, then in their foolishness they actually go ahead and suppress the personalities of their children. और जो अल्लाह ने उनके लिए रिस्क लिखा होता है, you see, risk is for us, for our growth also. So as we evolve, as our children evolve, as they become different individuals, it is learning for us also. We become more tolerant when we accept our children in the way that Allah has made them. We become more tolerant towards them. We become more tolerant towards the larger society. So we become better human beings. तो वो risk जो अल्लाह भेज रहे होते हैं through that we will be receiving through the upbringing of our children, we deny that by just trying to make things exactly the way we want them to be, because we are not open to anything new. Next ayat देखिए 6 की 151. Same surah, ayat 151. कुल ताआलो, कह दीजिए तुम आओ, अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, मैं रिहर्स करता हूँ, तिलावत करता हूँ जो तुम्हारे रब ने हराम किया है तुम पर. अब ये हराम किया है अल्लाह ने हमारे ऊपर, अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन, के नहीं शरीक करो उसके साथ किसी को, वबिल वालिदैने एहसाना, और वालिदैन के साथ आपने अच्छा काम करना है, एहसन बिहेवियर रखना है. वला तक्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और नहीं कत्ल करो अपनी औलाद को आउट ऑफ फियर ऑफ वांट. इमलाक इज मुफलसी की वजह से, अपनी deprivation की वजह से. If you feel that they will not be successful in a certain way, they will not be rich enough, or they will not be able to survive in the society like that, जो आपके मुताबिक है, तो out of that fear do not kill your children. नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, हम ही हैं जो हम उनको रिस्क देते हैं, तुमको भी और उनको भी. तो अल्लाह ताला provides sustenance for everybody. तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सस्टेनेंस, उनकी ग्रोथ अल्लाह ताला करते हैं. ही इज़ द रब ऑफ ऑल. वला तकरबुल फवाहिशा,
और आगे दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, करीब नहीं जाओ फवाहिश के, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो चाहे जाहिर में से हो या छुपी हुई हो। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु, और नहीं कत्ल करो, डू नॉट सप्रेस, डू नॉट ओवरकम एनी नफ्स जो अल्लाह ने हराम की, इल्ला बिल हक, सिवाय हक के साथ, एक्सेप्ट विद द ट्रूथ। ज़ालिकुम वस्साकुम, ये तुम्हें वसीयत की जाती है, बिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसके साथ तुम्हें वसीयत किया जाता है ताकि तुम अकल करो। So this is the sensibility that we are required to exhibit. अब 8 की 28 और 29 देखिए, सूरा 8 आयत नंबर 28। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम, और जान लो कि बेशक जो तुम्हारे माल है, व औलादुकुम फितनतुन, और जो तुम्हारी औलाद है वो एक कैप्टिवेशन है, इट इज़ अ टेस्ट फॉर अस। व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और बेशक अल्लाह के नज़दीक है सबसे बड़ा अजर, सबसे बड़ा रिवॉर्ड। तो ये औलाद हमारी जो होती है, हमें उसमें हम बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट हो जाते हैं औलाद के साथ। It is in us to look after our children and to want the best for our children, and we have very high hopes कि अब future में हमारे बच्चे एक जगह पे पहुंचेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ जो है एक लिमिट के अंदर रखने की ज़रूरत होती है, otherwise it becomes a captivation। तो यहाँ पे अल्लाह ने आपको उस चीज़ से वार्न किया है कि don't get captivated in all this, कि आप अल्लाह के करीब आपका रिवॉर्ड है, आप माल की स्ट्राइविंग में और औलाद को कहीं पहुंचा देने की स्ट्राइविंग में अपने आप को, अपनी जो है ना ग्राउंड रियलिटी दैट यू आर हियर टू सर्व अल्लाह ओनली, डोंट गेट कैरिड अवे इन दिस पर्पस। नेक्स्ट आयत देख लीजिए, या अय्युहल लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम गार्ड लो अल्लाह से, तकवा करो, यजअल लकुम फुरकानन, तो वो बना देगा तुम्हारे लिए क्राइटेरिया, ही विल मेक फॉर यू द फुरकान टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो आपको जब भी इस तरह की सिचुएशन से सामना हो तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह विल शो यू द राइट पाथ। व युकफ्फिर अनकुम सय्यआतिकुम, और वो हटा देगा आपसे आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेस, व यग़फिर लकुम, और आपकी मग़फ़िरत करेगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत ज़्यादा और बड़ा फजल करने वाले हैं। तो इन मामलात में we have to turn to Allah for guidance, and He will show us every time whenever we turn to Him with sincerity. Allah shows us what is right in that particular situation. इसी तरह की आयत देखिए 64 की 14, सूरा 64 आयत नंबर 14। या अय्युहल लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारे स्पाउस में, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलाद में, अदुव्वुल लकुम, तुम्हारे अदू इज somebody with opposite opinions। तो आपके लिए यहाँ enemy लिखा हुआ है, it's not enemy, it's somebody who is like an opponent or with opposite opinion। तो आपके स्पाउसेस में भी हो सकते हैं, आपकी औलाद में भी हो सकते हैं। फ़ाज़रूहुम, स्टे कॉशियस, स्टे अवेयर ऑफ दैट। व इन ताफू, और अगर आप उनको माफ करेंगे, व तस्फहू, एंड यू ओवरलुक, व तग़फ़िरू, एंड यू फॉरगिव, फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं। So the person who is reading and wanting to do the right, who is reading Allah's ayat and wants to follow, वो recognize करते हुए कि आपके against भी हो सकते हैं आपके spouse की कुछ opinions या आपके बच्चों की कुछ opinions,
तो आपने you just be aware of it and you overlook and you forgive and let go, because आपको उन चीज़ों में if you take them up and if you going to cause lot of trouble and fight, तो फिर जारी बात है आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, तो उन चीज़ों से आप हट जाइए। नेक्स्ट आयत देखें, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितनतुन, आर अ कैप्टिवेशन, वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह के नज़दीक ही है सबसे बड़ा रिवॉर्ड। तो आपने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी जो है, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ ही है। तो आपने सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल सोच के आपने अल्लाह को सर्व करना है। उसके बाद आपने जो माल की तरफ आप अटेंशन या फोकस देते हैं या अपनी औलाद की तरफ देते हैं फोकस, उनको अच्छा बनाने में, उसको आपने कैप्टिवेशन की हद तक नहीं पहुंचने देना। अच्छा, ये हमारे अंदर एक्चुअली यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक और जगह बताया है कि चिल्ड्रन आर नॉट अ सोर्स ऑफ रिवॉर्ड, बिकॉज दैट्स अनदर, वी डू दिस बिकॉज वी थिंक कि अगर हमारे बच्चे कहीं पहुँच जाएंगे, नेक बन जाएंगे, अल्लाह की बेहतर सर्विस करेंगे, तो उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा। ये भी आयत देख लीजिए 34 की 35, सूरह 34 आयत नंबर 35। सूरह 34 आयत 35, वकालू नहनु अक्सरु अम्वालम व औलादा, और वो कहते हैं कि बेशक हमें हमारे पास कसरत से है, वी हैव मोर इन माल एंड इन औलाद, कि हमारे पास माल भी ज़्यादा है, औलाद भी ज़्यादा है। वमा नहनु मुअज़्ज़िबीन, तो हमें तो कोई परेशानी, कोई अजाब, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ सकती। तो वी सी दम एज अ सिक्योरिटी, कि अगर हमारे पास माल ज़्यादा है, हमारे पास औलाद ज़्यादा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कुल कह दीजिए, इन्ना रब्बी यबसतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ, बेशक मेरा रब स्ट्रेच एक्सटेंड करता है रिस्क जिसका वो चाहता है, वह यकदिरु व, और कदर करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है जिसका चाहता है। लाकिन्ना अक्सर अन्नासे ला यालमून, लेकिन ज़्यादातर इंसानों को इसका इल्म नहीं है। तो ये अल्लाह के हाथ में है, रिस्क का ज़्यादा होना या रिस्क का कम होना। आपकी माल और आपकी औलाद जो है वो आपको इस किस्म की सिक्योरिटी नहीं दे सकती। नेक्स्ट आयत नंबर 37 देखें, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम, और ना तुम्हारे माल और ना तुम्हारी औलाद, बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा, हमारे करीब ला सकती है तुमको, हमारे नजदीक। जुल्फा इज नियर, इट कैन नॉट ब्रिंग you closer to us, regardless of how much wealth you have, whatever status you have acquired and how many children you have, आप जितनी भी ग्रोथ आपकी हो गई है, जितने भी आप इवॉल्व हो गए हैं, आपने जितने अच्छे औलाद आपने पाल ली है, तो वो हमें आपको हमारे करीब नहीं ला सकती। इल्ला मन आमना, सिवाय इसके कि अगर आप ईमान लाएं, व आमिला स्वालिहन, और जो अपने अमाल की इस्लाह करे। तो आपका अल्लाह के करीब आना डिपेंड करता है इस पर कि आप कितना ईमान लाते हैं और कितनी अपने अमाल की करेक्शन करते हैं। वी कांट टेक दिस माल एंड औलाद एज अ सपोर्ट फॉर दैट। फ़उलाइका लहुम जज़ाउ दैफ़ा, और ये लोग हैं जिनके लिए उनका रिवॉर्ड होगा बहुत ज़्यादा, मल्टीप्लाइड, बिमा आमिलो, क्योंकि जो उन्होंने अमल किया। Your deeds alone will decide where you stand when you are in front of your Lord. वहुम फिल गुरुफाते आमिन, और वो होंगे on a higher dwelling, वो ऊंची जगह पे रेस्ट करेंगे अगर वो ईमान वाले होंगे। तो ये आपका जो आपकी जो भी है स्पिरिचुअल स्टैंडिंग या रिलीजियस स्टैंडिंग
یا اللہ کے نزدیک آپ کا ہونا وہ ان چیزوں پہ نہیں ڈپینڈ کرتا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیسے پالا. وہ آپ نے اچھائی کرنی ہے فار اللہ سے, بیکاز یو بین انسٹرکٹیڈ بائی اللہ to nurture them and to not impose your judgments upon them, and you as a good parent have been doing it mindfully. تو یہ آپ کا وہ زیادہ آپ کے لیے بہتری ہوگی. آگے اولاد کیسی ٹرن آؤٹ ہوتی ہے اس میں آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہیں انٹرفیئر اور انفلوئنس, کیونکہ ایز ویو سین ان حضرت نوز ایگزامپل آلسو, ہی از اے پروفٹ, بٹ ان کی انڈر ہز سپرویژن اینڈ گائیڈنس the child, ان کا جو بیٹا ہے وہ he grows up but he is not صالح. تو اللہ تعالیٰ, even Hazrat Nuh is not aware, and Allah Ta'ala makes it clear to him when he does not come along on the ark. تو وہ اللہ تعالیٰ and Hazrat Nuh, because he is the father, he does question Allah, but Allah says that you don't know that. So and then Hazrat Nuh corrects himself and seeks forgiveness for questioning Allah, because only Allah knows کہ کون اصلاح کرتا ہے, کون عمل صالح کرتا ہے, تو اسی کو اللہ آگے پراسپر کراتے ہیں اور ان کے لیے ہی ریوارڈ ہوتا ہے. تو آپ اپنی کوشش اپنے حساب سے, اپنی سمجھ کے مطابق, استطاعت کے مطابق, اللہ کی گائیڈنس کے مطابق کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کے آپ کے اوپر نہ اس طرح کی رسپانسبلٹی آتی ہے اور نہ ہی آپ کو بہت افسوس کرنا چاہیے if things don't turn out the way you expected them to be. نیکسٹ آیت دیکھ لیجیے 31 کی 33, which is also a confirmation of the same. Surah 31 آیت نمبر 33. یا ایوہ الناس, اے انسانو, اتقو ربکم, بخشو, گارڈ لو تم اپنے رب سے اور اسی سے ڈرو. یومل لا یجزی, اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کوئی ریوارڈ, کوئی جزا, کوئی nobody can avail, والد او ولادہ, کوئی والد اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. ولا مولود ہوا جازن او والدیہ شیئا, اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے والد کو کسی چیز میں بھی کوئی سپورٹ یا فائدہ دے سکے گا. انا وعد اللہ, بے شک اللہ کا وعدہ ہے, حق, سچا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, پھر نہیں آپ کو دنیا کی زندگی بہکا دے, ڈسیو کر دے, دھوکے میں ڈال دے اس کے بارے میں. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ ہی آپ کو دھوکہ دے اللہ کے بارے میں الغرور, the chief deceiver which is شیطان, جو آپ کو ہر دفعہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے چیزوں کے معاملے میں. تو اس دن جب آئے گا تو آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود ہی دینی ہوگی. The son cannot help father and the father cannot help his son. تو یہ سب کا اپنا اپنا معاملہ ہوگا انڈیویجول اللہ کے سامنے. لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے always we desire that our children should be, and that's a very natural desire, کیونکہ یہی desire حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا and what about my children. So he did ask Allah for blessings about his children also, and Allah said but the blessings will not be for those who do wrong. تو یہ بھی آپ آیت دیکھ لیجیے 2 کی 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اور جب ٹرائل لیا ابراہیم کا ان کے رب نے, بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, with the words, تو وہ پورے اترے اس پر. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ, تو اللہ نے کہا میں بنا رہا ہوں آپ کو, لِلنَّاسِ إِمَامًا, انسانوں کے لیے امام. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں what about my children, my progeny.
तो काला अल्लाह फरमाते हैं ला यनालु अहद ज़ालिमीन, नहीं पहुंचेगा मेरा प्रॉमिस जुल्म करने वालों तक, जो गलत काम करते हैं। तो उनकी प्रोजनी में से जो भी सही काम करने वाले होंगे उनको अल्लाह फ़ायदा पहुंचाएंगे, उनका रिवॉर्ड देंगे, लेकिन जो नहीं होंगे उनको सबमिट करना होगा कि उन तक अल्लाह की रहमत, अल्लाह की ब्लेसिंग्स नहीं पहुंचेंगी। अब हम दुआएं देख लेते हैं जी। 46 की 15 to 17 देख लीजिए। सूरा 46 आयत नंबर 15 onwards। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, और हमने वसीयत की इंसान के लिए उसके वालिदैन के बारे में कि वो अच्छा बर्ताव करे, उनसे एहसन सलूक रखे। हमलतहु उम्मुहु कुरहन, उसको उठाया उसकी वालदा ने तकलीफ में। ववदाअतहु कुरहन, और उसको डिलीवर किया इन पेन, तकलीफ में। वहमलुहु वफिसालुहु सलासूना शहरा, और उसको उठाना हमल में और उसको वीन ऑफ करना 30 महीनों का है। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि जब वो पहुंच गया अपनी मैच्योरिटी को, अपनी शिद्दत को। व बलगा अरबाईना सना, और वो पहुंच गया 40 साल तक। That's the level of maturity that is being talked about. तो उसने कहा काला रब्बे औज़ैनी, ए मेरे रब मुझे अता कीजिए, अन अशकुरा नेमतक अल्लाती, कि मैं शुक्र करूं आपकी नेमत का जो आपने अनअमता अलैया, मेरे ऊपर इनाम की, व अला वालिदैया, और मेरे वालदैन के ऊपर की। तो ये जब लेवल ऑफ मेच्योरिटी आती है इंसान के अंदर तो ही इज़ ग्रेटफुल। तो ही आस्क्स अल्लाह कि आप मुझे अता करें कि मैं शुक्र अदा कर सकूं। तो शुक्र अदा करने का मतलब एक तो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्लस व्हाट कैन आई डू टू कॉम्पनसेट दैट ग्रैटिट्यूड दैट यू हैव बेस्टोर्ड अपॉन मी। जो ब्लेसिंग आपने मेरे ऊपर की है, मैं उसके लिए हाउ कैन आई गिव समथिंग इन रिटर्न, डू समथिंग इन रिटर्न। व अन आमला स्वालिहन तरदाहु, और ये कि मैं कोई अमल करूं साले जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो। व असले ली फी ज़ुर्रियाती, और मेरी इस्लाह कर दीजिए मेरी औलाद के मामले में। तो यहाँ पे एक तो पहले आप शुक्र अदा कर रहे हैं, दिस इज सेंसिबल मैच्योर इंडिविजुअल, कि वो पहले शुक्र अदा करता है अल्लाह का कि आपने जो नेमत मेरे और मेरे माँ बाप पे की है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कि मैं उस शुक्र अदा करने के लिए मैं कौन सा अमल करूं जो आपकी रजा के मुताबिक हो। आई वुड लाइक टू मेंड, आई वुड लाइक टू डू सम करेक्शन इन योर वे, और मेरी इस्लाह कर दीजिए मेरी औलाद के मामले में भी। सो आई फर्दर वांट टू करेक्ट फॉर माय चिल्ड्रन एज वेल। इन्नी तुब्तो इलाइका, के बेशक आई टर्न टू यू ओनली, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और बेशक मैं सबमिट करने वालों में से हूँ। तो ये आप दुआ मांग सकते हैं ताकि आप अपनी करेक्शन करें अपनी औलाद के मामले में, जहाँ जहाँ आपको लगे कि देयर इज समथिंग इज रॉन्ग, कोई चीज़ सेटल नहीं हो रही है, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट डिस्कॉर्ड गोइंग ऑन इन द फैमिली, तो आप ये दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको गाइडेंस दें कि आप किस तरह से अपनी करेक्शन करेंगे, तो आगे से आपके बच्चे भी उस तरह से दे विल ओपन अप एंड रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे। नेक्स्ट दुआ देखिए सूरा 14 आयत 4040। सूरा 14 एंड आयत 40। रब्बिज अलनी मुकीमत सलाती, ए मेरे रब बना दीजिए मुझे कि मैं कायम कर सकूं सलात, कनेक्शन आपके साथ। व मिन ज़ुर्रियाती, और मेरी औलाद में से भी उनको भी बनाइए कि वो आपके साथ सलात कायम कर सकें। रब्बना व तकब्बल दुआ,
اے ہمارے رب قبول کر لے ہماری یہ دعا. ربنا فرلی، اے ہمارے رب مغفرت کر دے میری، ولی والدیہ اور میرے والدین کی، وللمؤمنین اور ایمان والے لوگوں کی، یوم یقوم الحساب اس دن کے لیے جس دن قائم کیا جائے گا حساب. تو یہاں آپ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں دعا کہ اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن اسٹیبلش ہو، ان کو اللہ توفیق عطا کریں کہ وہ صلات قائم کر سکیں. اور یہاں نیکسٹ آیت میں آپ اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں جو کہ اس حساب والے دن ہوگی. 3 کی 38 دیکھیں جو حضرت زکریا دعا مانگتے ہیں صالح اولاد کے لیے. سورہ 3 آیت نمبر 38. ہنالک دعا زکریا ربہ، اور اس طرح وہاں پہ دعا کی زکریا نے ان کے رب سے. کالا کہا، رب حبلی من لدنکا، اے میرے رب مجھے عطا کر دیجئے آپ کی طرف سے ذریاتن طیبہ، ایک طیب اولاد، پیور نیک اولاد. انا کا سمیع الدعا، بے شک آپ سننے والے ہیں دعا کو. تو یہ ہم دعا کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. اور 25 کی 74 دیکھیں لاسٹلی، سورہ 25 آیت نمبر 74. والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دیجئے ہمارے لیے ہماری اسپاؤزز میں، وذریاتنا اور ہماری بچوں میں ہماری اولاد میں، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، کمفرٹ آف آر آئیز ان کو بنا دیں ایسا، ان میں عطا کر دیں اس طرح سے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، کمفرٹ بن جائے ہمارے لیے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دیجئے امام متقی لوگوں کے لیے. تو یہ دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اور اپنے لیے اپنی گائیڈنس کے لیے، تاکہ ہم جہاں جہاں کوشش کر کے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھ سکیں. بیکاز رسپانسبلٹی جہاں ہماری آتی ہے وہاں پہ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی آر فالوئنگ دا آیات اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈو آر بیسٹ ان دیٹ مینر. باقی رزلٹس اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ نے سب کو اپنی اپنی جگہ بھی اسپیس بھی دینی ہوتی ہے، کیپٹیویٹ بھی نہیں ہونا ہے، اور پیرنٹس کی طرف آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کرنی ہے. لیکن وہاں بھی لمیٹیشنز اللہ نے بتائی ہیں کہ جہاں اللہ کے راستے میں ہو وہ ڈیوٹیز تو آپ ضرور کیجئے، جہاں کہیں اور سروس ہو رہی ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، وہاں پہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ may Allah guide us in this regards.